ماحولیات کی نااہلی کے باعث فضائی آلودگی میں مزید اضافہ. سیاہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو فضائی آلودگی پھیلانے کی کھلی چھٹی دے دی گئی. فیکٹریوں کی وجہ سے آنے والے دنوں میں لاہور کی طرح قصور بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہوگا. قصور میں آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس 260 تک پہنچ گیا. محکمہ ماحولیات کی نااہلی کے باعث اسموگ کی وجہ سے ہزاروں شہری سانس اور آنکھوں جیسے امراض میں مبتلا. شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. اوکاڑا میں 2 گروپوں میں فیملی تنازع پر فائرنگ. ایک خاتون جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. جاں بحق ہونے والی لڑکی کی شناخت ننی بی بی کے نام سے ہوئی ہے. زخمیوں میں 45 سالہ سیما، 50 سالہ حلیمہ، 22 سالہ شہزادی شامل ہیں. پولیس موقع پر پہنچ گئی. شواہد اکٹھے کر کے کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا. پولیس اس واقعے کی ہر زاویے سے تحقیقات کر رہی ہے. بھیرا میں موٹر وے سروس ایریا کے قریب ٹائر برسٹ ہونے سے گاڑی درخت سے جا ٹکرائی. حادثے کے نتیجے میں 2 سالہ زوہان جاں بحق، اس کی والدہ ارم زخمی ہو گئی. گاڑی میں 4 افراد سوار تھے. والد احمد علی اور ڈرائیور عدیل محفوظ رہے. فیملی اسلام آباد سے لاہور شادی کی شاپنگ کی غرض سے آ رہی تھی کہ حادثہ پیش آ گیا. گمبٹ میں پولیس مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا. ڈاکو نجی بینک ملازم پر کاش کمار سے دن دہاڑے 27 لاکھ لوٹ کر موقع سے فرار ہو رہے تھے. اطلاع ملتے ہی پولیس نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا. ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی. جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا. ایس ایس پی خیرپور کا کہنا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری روانہ کر دی گئی ہے. چکوال کے مدرسہ میں 14 طلباء کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے کیس میں اہم پیش رفت. پولیس نے دونوں مرکزی ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کر دیا. ملزم ذیشان اور انیس کو علاقہ مجسٹریٹ رانا آصف علی کی عدالت میں پیش کیا گیا. مجسٹریٹ نے دونوں ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے. پولیس کی جانب سے بھی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی گئی. عدالت کی جانب سے پولیس کو کیس کی تفتیش جلد از جلد مکمل کر کے چالان جمع کرانے کی ہدایت. اور سرائے عالمگیر پولیس وردی میں ملبوس ڈاکوؤں نے ات مچا دی. ایک ہی رات میں 15 دکانیں لوٹ لی. مبینہ طور پر واردات غلہ منڈی میں ہوئی. عینی شاہد کے مطابق 3 ڈاکو پولیس وردی میں ملبوس ہو کر آئے. 4 گھنٹے مسلسل واردات کرتے رہے. ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر چوکیدار کو رسیوں سے باندھ دیا تھا. اطلاع ملتے ہی پولیس نفری موقع پر پہنچ گئی. شہری غیر محفوظ ہو کر رہ گئے. شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں اقصیٰ خان اور میں ہوں کامران اکرم. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھی ثقافتی ڈے قریب آتے ہی اجرک ٹوپی کی خریداری میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ٹوپی اجرک کے اسٹالوں پر رش دکھائی دینے لگا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانی پور سے عرفان بروہی کی اس خصوصی رپورٹ میں. 3 دسمبر کو سندھ کی کلچر ڈے بڑی جوش و جذبے سے منایا جائے گا، جس کی تیاریاں روز پر پہنچ گئی ہیں. سندھی ثقافتی دن کی موقع سندھ کی ثقافت پہچان ہے. ٹوپی اجرک کی
مانگ میں بھی افزائی ہو گیا ہے۔ اسٹالوں پر رش دکھائی دیتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کلچر ڈے کے موقع پر ٹوپی اجرک کی خریداری میں افزائی ہو جاتا ہے۔ 3 دسمبر عید کا دن، ثقافت کا دن، بڑا دن، اور ہر سال کی طرح ہم زور شور سے مناتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ہم تمام شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ دن ہمیں دیا، اور مہربانی، تھینک یو ساری میڈیا کے۔ ناظرین، یہ اس کا جب اعلان ہوا ہے 3 دسمبر، ہم اس کو ایسے مناتے ہیں جیسے عید کی طرح، اور ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور ہمارے پاس سندھی ٹوپی کی بہت رش ہوتی ہے، بڑی دور سے لوگ آتے ہیں، ہم دوستوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ یہ ہم ایسے مناتے ہیں جیسے عید کا دن۔ سندھی کلچر ڈے 4 دسمبر کو قومی جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن پر سندھی قومی گیتوں پر رقص کیا جاتا ہے۔ تقریبات منعقد کر کے سندھی کلچر ڈے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ناصر، خبر آپ کو دیں کہ ہری پور میں پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے نو منتخب کابینہ کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ 7 چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر صفدر زمان شاہ، تحصیل چیئرمین سمیع اللہ خان، ایس پی آصف گوہر، طیب سواتی، ملک سعید نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ پی ڈی اے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی 9 منتخب کابینہ کی حلف برداری مقامی ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صوبائی چیئرمین ڈاکٹر زبیر ظاہر اور سینئر صوبائی صدر ڈاکٹر راحیل شہزاد نے شرکت کی۔ صوبائی چیئرمین ڈاکٹر زبیر ظاہر نے 9 منتخب کابینہ ڈاکٹر سجاد صدر، ڈاکٹر تنویر سینئر نائب صدر، ڈاکٹر عتیق جنرل سیکرٹری، ڈاکٹر افرا کوکب، ڈاکٹر طاہر اقبال، ڈاکٹر بلال عباسی و دیگر عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب میں 7 چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر و سابق صدر چیمبر آف کامرس سید صفدر زمان شاہ، چیمبر آف کامرس کے صدر طیب سواتی، سینئر نائب صدر ساجد نسیم، ملک سعید، ڈاکٹر امجد قریشی، تحصیل میئر سمیع اللہ خان، صدر ہائی کورٹ بار جاوید خان تنولی، ڈاکٹر حسنین رضا، ایس پی انویسٹیگیشن آصف گوہر، آرٹ ٹریڈ فیڈریشن کے صدر محمد سلیم اوان، ڈاکٹر فائزہ رشید، ایم ایس ڈاکٹر محسن رضا، ملک حفیظ کے علاوہ ڈاکٹرز، پیرامڈسٹ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صوبائی چیئرمین پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر زبیر ظاہر اور ڈاکٹر راحیل نے پی ڈی اے کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ الیکشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر طاہر انگیز و دیگر ڈاکٹر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہری پور میں پی ڈی اے کو زندہ رکھا۔ پی ڈی اے ایسوسی ایشن کا مقصد مریضوں کے حقوق اور ڈاکٹروں کے حقوق کی جدوجہد کرنا ہے۔ اگر اس میں کسی نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تقریب سے 7 چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر سید صفدر زمان شاہ، تحصیل میئر سمیع اللہ خان، ڈاکٹر حسنین رضا ترابی، ڈاکٹر جاوید اقبال، ہائی کورٹ بار کے صدر جاوید خان تنولی، 9 منتخب صدر ڈاکٹر سجاد احمد، ڈاکٹر فائزہ رشید، ایم ایس ڈاکٹر محسن رضا، ملک حفیظ اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور 9 منتخب کابینہ کو مبارکباد دی۔ قبل ازیں چیمبر آف کامرس کے باب نے 9 منتخب کابینہ کو ہار بھی پہنائے اور مبارکباد بھی دی۔ آخر میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی میں گبول ٹاؤن تھانے کی حدود میں فائرنگ سے ایک شخص کے زخمی ہونے کا معاملہ، پولیس تھانہ خواجہ اجمیر نگری اپنی ہی پستول کی گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی۔ واضح رہے کہ سیکٹر 16B مل ایریا میں عزیر گل کے فائرنگ سے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ زخمی شخص نے ابتدائی طور پر بیان دیا تھا کہ اس کو کسی نامعلوم شخص نے فائرنگ کر کے زخمی کیا۔ مزید جانتے ہیں انوار احمد شیخ کی اس رپورٹ میں۔ پولیس کی مضر صحت گٹکا ماوا فروش ملزم کے خلاف کارروائی۔ تھانہ خواجہ اجمیر نگری پولیس نے گٹکا ماوا فروش ملزم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان یاسر ول یعقوب، علاؤالدین، فیضان ول محمد ایوب کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مضر صحت گٹکا ماوا 250 پڑیا، 20 کلو چھالیا، 5 پیکٹ تمباکو، 11 پیکٹ چونا برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ الزام نمبر 792/2023 با جرم دفعہ 481 گٹکا ماوا ایکٹ
दर्ज रजिस्टर किया। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने एक और गुटखा मावा फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद अशरफ वल अली से मुजरसेद गुटखा मावा 100 पुड़ियां बरामद करके मुलजिम बाला के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 753/2023 बाजुर्म दफा का मावा 8 दर्ज रजिस्टर किया। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने मुजरसेद गुटखा फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल वाहिद वल बाबूद्दीन गिरफ्तार शुदा वसीम वल नामालूम फरारी से 250 पुड़िया गुटखा मावा 10 किलो छालिया बरामद करके मुलजिम बाला के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 754/2023 बाजुर्म दफा 48 गुटखा मावा 8 दर्ज रजिस्टर किया गया। एक और कार्रवाई में पुलिस ने मुलजिम गुटखा मावा फरोश जो के मौके से फरार हो गया था दिलावर वल अशरफ फैजान वल अशरफ की दुकान से 150 पुड़िया 180 किलो छालिया 12 किलो तंबाकू 60 किलो चूना। नाज़रीन खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां 2 ग्रुपों में फैमिली तनाज़े पर फायरिंग से खातून जाबहक 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाबहक होने वाली लड़की की शिनाख्त ननी बीबी के नाम से हुई है। जख्मियों में 45 साल सीमा, 50 साल हलीमा, 22 साल सारजादी शामिल हैं। पुलिस मौका पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। पुलिस इस वाक़े की हर जाविये से तहकीकात कर रही है। फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए तमाम मसालिक के उलमा इकराम का जामे उस्मानिया शोरकोट में इजलास हुआ। यहूदी मसनूआत के मुस्तकिल बायकॉट की मुहिम चलाने और जुम्मा के खुतबात में शहरियों को आगाही देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई है। इजलास की सदारत मोहतमिम जामे उस्मानिया मौलाना जाहिद अनवर ने की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जामिया उस्मानिया शोरकोट में मौलाना मोहम्मद जाहिद अनवर मुतमिम जामिया उस्मानिया शोरकोट की ज़ेरे निगरानी तमाम मसाले के उलमाए कराम का जामिया उस्मानी में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में यहूदी मसनूआत की मुस्तकिल बाइकाट की मुहिम चलाने और जुमा के खुतबात में शहरियों को आगाही देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। जामिया उस्मानिया शोरकोट शहर में फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मौलाना मोहम्मद रफीक शोरकोटी, मौलाना अब्दुल वाहिद, हाफिज मोहम्मद अली, मोहम्मद ताहिर सल्फी, जमात इस्लामी MPA के उम्मीदवार प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल अंसारी समेत तमाम मसाले के उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौका पर मौलाना मोहम्मद जाहिद अनवर का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जामिया उस्मानिया शोरकोट शहर में हमारे तमामी मसालिक के नुमाइंदा हजरात, उलमा हजरात, प्रोफेसर इकबाल साहब, मौलाना रफीक राना साहब और दीगर ये सब उलमा और प्रेस के नुमाइंदे, इसमें एक ही यकनुकाती एजेंडा है कि तमाम उम्मत मुसलमान इस वक्त तड़प रही है गजा के मुसलमानों के लिए, और इस वक्त जो वहाँ मजालिम हो रहे हैं और पूरी आलमी दुनिया का ज़मीर भी मैं कहता हूँ चाहे वो गैर मुस्लिम हैं उनका भी जागा है और वो एहतजाज कर रहे हैं। हमारी जो मुश्तरका आवाज़ है वो ये है कि खुदारा सारी उम्मत मुसलमा इज्तिमाई बेदारी के साथ उन गजा के मुसलमानों की अमली इमदाद करे और इसराइली मसनूआत और जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं जो यहूद नसारा की बनी हुई हैं पूरी दुनिया में, इनका बाइकाट किया जाए। जामिया उस्मानिया शोरकोट में तमाम मसाले के उलमा का एक मुश्तरका इजलास हुआ जिसका यकनुकाती एजेंडा इजराइली और यहूदी मसनूआत का बाइकाट था, और ये तय हुआ है कि तमाम मसाजिद के अंदर मेंबर से और खुतबा है जुम्मा में अवाम को आगाही दी जाएगी कि यहूदी मसनूआत का मुकम्मल और हमेशा के लिए बाइकाट किया जाए। और यहाँ भी ये भी तय पाया कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तुर्की ने तमाम कंपनियों की रजिस्ट्रेशन ख़त्म की है यहूदियों की, इसी तरह पाकिस्तान भी इजराइली और यहूदी जो कंपनियां हैं उनको हुकूमती सतह पर उनको बैन किया जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए। मौलाना मोहम्मद रफीक चिडियोटी ने कुछ यूं कहा, आज जामिया उस्मानिया के अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें एक ही नुक्ते पे जोर दिया गया कि पूरी दुनिया के अंदर और पूरे मुल्क पाकिस्तान में बाइकाट किया जाए इसराइली मसनूआत का, और तमाम जो कंपनियां हैं मल्टी नेशनल
नासिर खबर ये है कि कलम, किताब और खिलौनों की जगह हालात की सतम ज़रीफी कई बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। ऐसे ही पाकपतन की 8 साला दाऊद की गुर्बत उसकी तालीम को किस तरह से मुतासिर कर रही है। जानते हैं तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट। घर का बड़ा पाकपतन का नन्हा मेहनत कश गुर्बत ने बच्चे से बचपन छीन लिया। पाकपतन का 8 साला दाऊद पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र में बाजारों में कहवा बेचने में मसरूफ है। मजबूर हाल दाऊद दिन में स्कूल तो शाम में बचपन की खुशियां और ख्वाब कुर्बान करके अपने समेत 8 बहन भाइयों का पेट पालने में वालिदैन का सहारा है। मेरा नाम है दाऊद, मैं दूसरे क्लास में पढ़ता हूँ। ये मेरे पापा चैनल लाते हैं, मैं स्कूल भी पढ़ता हूँ, शाम को खाना लाता हूँ। मैं 4 बहना 4 भरा हैं। मैं खाना लाता हूँ और मैं ये जो से आया ये खर्चा पूरा होता है घर का। ये बच्चा सुबह स्कूल जाता है तो शाम नू अपने वालिदैन की सपोर्ट वास्ते अच्छा कहवा बेचता है, कहवा फरोख्त करता है, कहवा फरोख्त करके अपने वालिदैन की सपोर्ट करता है। तो हुकूमत नू चाहिए है कि इहो जे छोटे बच्चों की जेड़े बिल्कुल बेरोजगार ने इन्हां दी सपोर्ट हुकूमत करे। 8 साला दाऊद सरकारी स्कूल में दूसरी जमात का तालिब इल्म है। अपने बहन भाइयों की कफालत करते दाऊद का तालीम के साथ नाता कब तक कायम रहता है ये वक्त और हालात तय करेंगे। तारिक सज्जाद चिश्ती, कोहिनूर न्यूज़, पाकपतन। आरिफ वाला में मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम ओहदे दौरान का चुनाव और सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत हाजी मोहम्मद असलम शेख ने की, जिसमें कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदा रजा जैदी को सहाफती खिदमात पर एजाजी शील्ड से नवाजा गया। मज़ीद जानते हैं रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा। आरिवाला में मरकजी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड आरिवाला के ओहदेदारान का चुनाव और सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई। हाजी मोहम्मद असलम शेख मरकजी सदर, काशिफ मजहर नायब सदर, हाजी एहसान सीनियर नायब सदर, राना मोहम्मद अहमद जनरल सेक्रेटरी, राव रियाज फरनाज सेक्रेटरी, हाजी लतीफ खिलजी सदर कबूला बाजार, राना मोहम्मद रिजवान मरकजी जनरल सेक्रेटरी नशोशात मुकर्रर किए गए। नए ओहदेदारान की हलफ बर्दारी भी की गई। तकरीब में साहिवाल डिवीजन से मेहमान ग्रामी शेख जिशान, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल, चौधरी आमर साहब का सदर, हाजी लतीफ, एहसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी इरफान चुगताई, एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल बासित तशरीफ लाए। मरकजी अंजुमन ताजरान आरिवाला रजिस्टर के ओहदेदारान ने SDPO मलक तारिक, शेख इमदादुल्लाह, जावेद अशरफ, राव आसिफ इकबाल, शेख सज्जाद खालिद, मलक इजाज, इरफान सादिक, इमरान अमर तसरी को शील्डें पेश की। मरकजी अंजुमन ताजरान रजिस्टर की जानिब से सहाफती खिदमात पर सहाफियों में भी एजाजी शील्डें तकसीम की गई। आरिवाला से नुमाइंदा कोहिनूर TV रजा जैदी की सहाफती खिदमात को सराहते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान रजिस्टर की जानिब से एजाजी शील्ड से नवाजा गया। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद असलम शेख और शेख मोहम्मद नासिर असलम ने तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रजा जैदी, कोहिनूर TV, आरिफ वाला। नासिर खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से नक्से अमन का सबब बनने वाले मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। दौरान नाकाबंदी मुल्जिमान के कब्जे से असलहे की बड़ी खेप बरामद करके 3 मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस खुसूसी रिपोर्ट में। SP पेट्रोलिंग पुलिस फतेह अहमद के वाज़ेह अहकामात और DSP पेट्रोलिंग उकाड़ा सजाद मोहम्मद खान की सरबराही में पेट्रोलिंग पुलिस चौकी चक नंबर 48 3R ने जिला उकाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए LBDC पुल के मकाम पर पुलिस पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश करने वाले मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर काशिफ सलीम ने अपनी टीम के हमरा मुल्जमान का ताकुब करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान वकार अली वल्द वहीदुद्दीन, साजिद अली वल्द रशीद अहमद, रेहान वल्द अल्ताफ के कब्जा से राइफल 223 बोर बमा 130 गोलियां, पंप एक्शन 12 बोर बेमा 13 कारतूस, पिस्टल 30 बोर बेमा 5 गोलियां और मैगजीन बरामद कर लिए। मुल्जमान के खिलाफ आर्म्स एंड एमुनेशन एक्ट की दफात के तहत थाना सदर उकाड़ा में 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करवा।
कसूर में महकमा माहौलियात की नाअहली के बायस फिजाई आलूदगी में मजीद इजाफा हो गया है। स्याह धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को फिजाई आलूदगी फैलाने की खुली छुट्टी दे दी गई। फैक्ट्रियों की वजह से आने वाले दिनों में लाहौर की तरह कसूर भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त होगा। कसूर में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 तक पहुंच गया। महकमा माहौलियात की नाअहली के बायस स्मोक की वजह से हजारों शहरी सांस और आंखों जैसे अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों ने निगरान वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। ना से वहीं दूसरी जानिब चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। नौमंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठाया है। किसानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दाम पर गौर किया गया है। मेहमानों को यादगारी शील्ड पेश की गई। तकरीब में तैमूर हयात नून, चौधरी शौकत अली चद्दर, सैयद वकार रिजवी ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी शौकत अली चद्दर का कहना था कि ज़री शोबा मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन उस शोबे पर हुकूमत की तवज्जो ना होने के बराबर है। किसान खाद के लिए परेशान है और हुकूमत की नाअहली उरूज पर है। किसानों की बेहतरी के लिए अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। सैयद वकार रिजवी का कहना था कि हम चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान के जरिए किसानों के मसाइल हल करना चाहते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर ओहदेदारों ने हल्फ उठाया और मेहमानों को यादगारी शील्ड से भी नवाजा है। खानपुर में बाअसर जमींदार ने मेहनत कश की शादीशुदा बेटी मुबैना तौर पर अगवा कर ली। वालिदैन के अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील। मेहनत कश जाकिर हुसैन ने बताया कि मेरी बेटी परवीन को शुएब शमरानी, इब्राहिम शमरानी, अब्बास कोपांग ने अगवा कर लिया। मुल्जिमान इलाका के बाअसर जमींदार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया मगर आज तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। मुतासरा फैमिली ने अरबाब इख्तियार से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करेंगे रेनाला खुर्द से, जहां गंदम का सीजन शुरू होते ही यूरिया खाद की मांग में इजाफा होने लगा। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर जिशान हनीफ का कहना था कि किसानों की हुकूमती निर्खों पर खाद मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। महंगे दामों यूरिया खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। गंदम का सीजन शुरू होते ही यूरिया खाद की मांग में इजाफा हो जाता है। हुकूमती निर्खों पर यूरिया खाद फरोख्त करवाई जा रही है। महंगे दामों यूरिया खाद फरोख्त करने वाले खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें होता ये है कि जब गंदम की बिजाई शुरू होती है तो उकाड़ा हमारा जो जिला है वो पाकिस्तान पंजाब के बड़े जिलों में से आता है जहाँ गंदम काश्त होती है। तो जिस वजह से लोग जब यूरिया लेना शुरू करते हैं तो उसकी डिमांड और सप्लाई में कमी आ जाती है। इस कमी को पूरी करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारी गंदम आए, जो हमारा यूरिया है, हम उसका ट्रैक भी रखें और जो हमारे काश्तकार हैं उन तक हम उसको पहुंचाएं भी। इस सिलसिले में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा एसी ऑफिस और बाकी जो उसके साथ हेल्पिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रेगुलर मीटिंग्स भी हो रही हैं। और उसके अलावा हमने अपने ऑफिस के अंदर एक सेंटर कायम किया है जो यूरिया प्रोवाइड करवाता है जो जिस किसी को कंप्लेंट होती है। बहुत सारे लोग हमसे मिलते भी हैं इस मामले में आकर और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कोशिश है कि कहीं पे शॉर्टेज ना हो। तो इसमें आवाम से भी अपील है कि जहां कोई कंप्लेंट आए, जहां किसी के पास कोई कंप्लेंट हो कि यूरिया का कोई स्टोर कर रहा है या अनरिकॉग्नाइज्ड एक प्लेस है जहां भेरा में मोटरवे सर्विस एरिया के करीब टायर बस्ट होने से गाड़ी ट्रक से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 2 साला जुहान जाँ बहक हो गया। उसकी वालिदा एरम जख्मी हो गई। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे। वालिद अहमद अली और ड्राइवर अदील महफूज रहे। फैमिली इस्लामाबाद से लाहौर शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी कि रास्ते में गाड़ी को हादसा पेश आ गया। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर से, जहां भेरा मोटरवे सर्विस एरिया के करीब टायर बस्ट होने से गाड़ी दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 2 साला जुहान जाँ बहक हो गया। उसकी वालदा इरम जख्मी होकर एक गाड़ी में 4 अफराद सवार थे। वालिद अहमद अली और ड्राइवर अदील महफूज रहे। फैमिली इस्लामाबाद से लाहौर शादी की शॉपिंग की गर्ज से आ रही थी तो ये वाकया पेश आया।
सियालकोट पुलिस और इंटरपोल की मुश्तरका कार्रवाई इंतहाई मतलूब इश्तिहारी को मस्कत से गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मोहसिन अली दावे कत्ल के 3 मुकदमात और चोरी के 1 मुकदमे में मतलूब था। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज एक्सट्राडिशन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नसीर ने मुल्जिम के रेड वारंट जारी करवाए और इंटरपोल की मदद से मुल्जिम मोहसिन अली को मस्कत से डिपोर्ट करवा के गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ का कहना था कि मजलूम की दादरसी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए मुल्जिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी जरूरी है। इस सिलसिले में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। नाज़रीन, अब कुछ बात स्मॉग से मुतालिक तो नारंग मंडी में स्मॉग पर काबू पाने के ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए हैं। इंतजामिया की जानिब से फसाई आलूदगी के दर्जनों मुकदमात के इंदराज के बावजूद नारंग मंडी के गिरदो नवाह में जमींदार सरेआम फसलों की बाकियात को जलाने लगे हैं। हद निगाह तक धुएं के बादल मंडलाने से फसाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जबकि शाहराहों गलियों मोहल्लों में कूड़ा करकट जलाने के वाकयात में कमी न हो सकी। डीसी शेखुपुरा ने स्मोक की रोकथाम के सिलसिले में 5 तहसीलों में हंगामी दौरे कर रहे हैं, जबकि फसलों की बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ किए जाने वाले जुर्मानों के बावजूद मकीनों ने अपना किबला दुरुस्त न किया। उकाड़ा में पुलिस वैन ने मोटरसाइकिल सवार वकील को कुचल डाला। वाकया डीपीओ चौक में पेश आया। एडवोकेट राय अमीन कचहरी जा रहा था। डीपीओ चौक में पुलिस वैन की जद में आ गया। वैन ड्राइवर मुदस्सर और हामी वकला में झड़प भी हुई। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से उकाड़ा से, जहां पुलिस वैन ने मोटरसाइकिल सवार वकील को कुचल डाला है। वाकया डीपीओ चौक में पेश आया। एडवोकेट राय अमीन कचहरी जा रहा था कि डीपीओ चौक में पुलिस वैन की इज्जत में आकर जिंदगी की बाजी हार गया। मलका कोहसार के संगम पर वाक़िया अयूबिया नेशनल पार्क अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। अयूबिया नेशनल पार्क का कयाम 1984 में हुआ। अयूबिया नेशनल पार्क का कुल रकबा 8,184 एकड़ जो सतह समंदर से 8200 फीट की बुलंदी पर वाक़िया है। कुदरती जंगलात जिनमें कीमती और नायाब लकड़ियों के साथ जंगली जानवरों और परिंदों की बड़ी तादाद पाई जाती है। इस हवाले से देखते हैं ज़िया अहमद अब्बासी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मलका कोहसार मरी के संगम पर वाक़या कुदरती खूबसूरती से भरपूर कुदरत का अजीम शाहकार अयूबिया नेशनल पार्क का क़याम 1984 में हुआ। अयूबिया नेशनल पार्क का कुल रकबा 8,184 एकड़ है, जो सतह समुद्र से 8,200 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। अयूबिया नेशनल पार्क के साथ जो इलाके लगाए गए हैं, इनमें डूंगा गली, कुंडला, तौहीदाबाद, कूजा गली, अयूबिया, लाहौर कास, मशकबूरी टॉप शामिल हैं। सियाहों को दिलकश नज़ारे देखने के लिए अयूबिया नेशनल पार्क के साथ 3 ट्रैक बनाए गए हैं। पहला ट्रैक अयूबिया नेशनल पार्क तक बनाया गया, जो अयूबिया से डूंगा गली की तरफ जाता है। इसका फासला 4 किलोमीटर है। इसके बाद लालाजार ट्रैक जो नथिया गली से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मशकबूरी ट्रैक जो डूंगा गली से मशकबूरी टॉप तक जाता है। अयूबिया नेशनल पार्क में पाए जाने वाले नायाब किस्म के परिंदे भी मौजूद हैं, जिनमें बनकुक्कड़, पैकर के अलावा बेशुमार परिंदों का बसेरा है। इसके साथ साथ जानवरों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर पाई जाती है, जिनमें बब्बर, शेर, चीता, जिनकी कई अक़साम मौजूद हैं। इसके साथ बहुत बड़ी तादाद में बंदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सियाहों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। कुदरत ने इस खित्ते को खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़ों और इंतहाई कीमती किस्म के जंगलात से भी नवाजा है, जिसमें दियार, बियार, चीर और दूसरे लातादाद किस्म के दरख्त शामिल हैं। अल्लाह पाक ने इस इलाके को कुदरती किस्मों से भी नवाजा है, जिनसे पानी बड़ी शहर तक सप्लाई होता है। कैमरामैन टीम के साथ ज़िया अहमद अब्बासी, कोहिनूर टेलीविजन। खबर शामिल करेंगे सराय आलमगीर से, जहां पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने अत मचा दी है। एक ही रात में 15 दुकानें लूट ली। मुबैना तौर पर वारदात गला मंडी में हुई है। एनी शाहिद के मुताबिक 3 डाकू पुलिस वर्दी में मलबूस होकर आए, 4 घंटे मुसलसल वारदात करते रहे। डाकुओं ने असलहा के जोर पर चौकीदार को रस्सियों से बांध दिया था। इतला मिलते ही पुलिस नफरी मौका पर पहुंच गई। शहरी गैर महफूज होकर रह गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा है।
लुडन में पुलिस का जुराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। कार्रवाई SHO राय साजिद ने की। तालिब हुसैन दरबार टिब्बा हसन शाह के नजदीक मनशियात फरोख्त कर रहा था, जिसको रंगे हाथों गिरफ्तार करके उससे 400 और अहमदाबाद के रिहायशी रियाज से 100 लीटर जायद देसी शराब बरामद करके हवालात में बंद कर दिया है। जबकि अड्डा बट गुलाम के नजदीक फैज अहमद रहमानी से चालू भट्टी बरामद कर ली गई। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे आरिफ वारा से, जहां हुकूमत पंजाब के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल ने शहर भर का दौरा किया। AC दौरे के दौरान स्मोक के हवाले से मिनी लॉकडाउन पर अमल दरामद का भरपूर जायजा लिया गया। AC का कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खानेवाल में इद्दत में घर बैठी टीचर समेत 4 सीनियर खातीन उसातिज़ा को जबरी रिटायर्ड करने का मामला। टीचर्स और तुलबा का जिला इंतजामिया के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की DC दफ्तर के सामने नारेबाजी। टीचर मुसरत गिलानी का कहना था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, सर्विस मजीद रहती थी, गैर कानूनी तौर पर रिटायर्ड कर दिया गया। खातीन टीचर्स ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नासिर खबर शामिल करेंगे वजियावाला से, जहां जगह जगह गैर कानूनी तेल एजेंसियों की भरमार है, कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ तेल एजेंसी, साथ ही बर्गर पॉइंट है, किसी बड़े सानहे कम सबब बन सकते हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया की खामोश तमाशाई बन चुकी है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। वजियावाला में जगह जगह गैर कानूनी तेल एजेंसियों की भरमार हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ तेल एजेंसी है तो दूसरी जानिब बर्गर पॉइंट भी साथ ही मौजूद है, किसी बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस का मुतालिबा किया है। मियां चुन्नू में सोशल मीडिया के जरिए लड़की की फैमिली को ब्लैकमेल करने वाले 2 मुलजिम पकड़े गए। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुएब और बिलाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा साथी फरार हो गया। मुलजिमान वीडियोस के जरिए लड़की के वर्सा को ब्लैकमेल करके पैसे बटोर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब जैकबाबाद में कोरोना के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजमीन का 9 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाज है। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि DHO की जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा है, तनख्वाहें जारी ना की गई तो भूख हड़ताल जरूर करेंगे। पनवाकेल में 3 साला बच्ची घर के सामने खेलते हुए गंदे नाले में गिरकर डूबकर जाँ बहक हो गई। वर्षा और इलाके मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 1 घंटे की कोशिश के बाद बच्ची को गंदे नाले से निकाल लिया। बच्ची की लाश घर पहुंचते ही कोहराम बर्पा हो गया। नासिर खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां थाना पुलिस की गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से बड़ी तादाद में गुटखे के पैकेट और छालियां, तंबाकू और चूना बरामद कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। आजाद की हदूद में पुलिस की मंशियात फरोशी और बाइक लिफ्टिंग में समेत गुटखा मावा फरोशी में मुलव्विज मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई जारी। खुफिया इतला और टेक्निकली बुनियादों पर कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल, चर्च और गुटखा मावा बरामद। नाज़िमाबाद पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम फैजान वल बशीर अहमद को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 520 ग्राम आधा किलो से जायद चर्च, मसरूक मोटरसाइकिल, थाना तैमूरिया और नगद बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर
507/2023 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अजीजाबाद पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम वलीद खलील को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 70 पैकेट गुटखा मावा बरामद कर लिए गए। पापोश पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम दिलावर वल मुश्ताक को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 170 ग्राम चर्स, मोटरसाइकिल थाना पाक कॉलोनी और नगद बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 316/2023 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अनवार अहमद शेख, केन न्यूज। नासिर खबर शामिल करेंगे चकवा से, जहां मदरसे में 14 तलबा को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने दोनों मरकजी मुलजिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम ज़ीशान और अनीस को इलाका मजिस्ट्रेट राना आसिफ अली की अदालत में पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट ने दोनों मुलजिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। पुलिस की जानिब से भी मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। अदालत की जानिब से पुलिस को केस की तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके चालान जमा कराने की हिदायत की गई है। गुम्बट में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। डाकू निजी बैंक मुलाजिम प्रकाश कुमार से दिन दहाड़े 27 लाख रुपए लूटकर फरार हो रहे थे। इतला मिलते ही पुलिस ने डाकुओं का ताक़ुब किया। मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक हो गया। एसएसपी खैरपुर का कहना था कि पुलिस की भारी नफरी रवाना कर दी गई है। नासिर खबर शामिल करेंगे खुशाब से, जहां 27 नवंबर से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम में 19-20-21 के CMOs ने पुराने पोलियो वर्कर्स को निकाल कर सिफारिशी वर्कर रख लिए हैं। मुतासरीन ने CEO से फौरी नोटिस देने का मुतालबा भी कर दिया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से, जहां 27 नवंबर से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम में 19-20-21 के UCMOs ने पुराने पोलियो वर्कर्स को निकाल कर सिफारिशी वर्कर रख लिए हैं। मुतासरीन ने CEO से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खानेवाल शहर में मछली की दुकानें सज गईं। शहरियों ने मौसम का मजा लेने के लिए मछली की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मौसम ने ली अंगड़ाई तो जाड़े की ठंडी हवाओं से बचने के लिए शहरी जिस्मानी गर्मी में इजाफे के लिए शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी मछली के गोश्त की दुकानों पर अपने मनपसंद मछली का गोश्त खरीद रहे हैं। खानेवाल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मछली के गोश्त की दुकानें सज गई हैं। मैं घर से निकला था लिस्ट बना के घर के खाने पीने के लिए सामान की। बड़ा गोश्त देखा, मुझे पसंद नहीं आया। सब्जी बहुत महंगी है, गरीब आदमी नहीं ले सकता, इसलिए फिर बच्चों को इसरार भी था कि भाई जो है ना मछली लेके आए। और मौसम भी ठंडा है और इस ठंड में जो है ना मछली बड़ा मज़ा देती है। 100 रुपये दाल पकाए खाओ या मतलब है इसको तल के खाओ, रोस्ट करके खाओ, ये आपकी मर्जी है। शहरी का कहना था कि मछली का गोश्त इंसानी जिस्म के लिए अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक है। मछली के हवाले से बात करते हैं कि उसमें फ़ायदे क्या हैं। उसके फ़ायदे ये है कि भाईजान हर डॉक्टर हर मरीज़ को यही बताता है कि आप मछली वाइट मीट इस्तेमाल करें। वाइट मीट इसलिए बताते हैं कि मछली का इस्तेमाल करें कि उसमें जो है ना वो चीज़ें पाई जाती है जो हमारे खून में चर्बी को रोकती हैं और चर्बी को घटाती हैं, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बाकी हमारे पे जो मछली की वैरायटियाँ हैं वो उसमें रोहू है, डमरा है, मल्ली है, शिंगारी है और मुनासिब रेटों में है। पिछले साल की निस्बत मछली के गोश्त की कीमतों में इजाफे की वजह से इस साल हमारा काम काफ़ी मुतासर होकर रह गया है। शहरी डमरा, रोहू, शिंगारी, मल्ली, सुरमई और दीगर अकसाम की मछली खरीद रहे हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई तो खानेवाल के शहरियों ने मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए मछली की स्टॉलों का रुख किया, जहां पर अपने पसंद की मछली खरीद कर मज़े के सालन और उसके साथ फ्राई कर खा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, कोहिनूर। नासिर खबर शामिल करेंगे भवाना से, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ईंधन का हसूल मुश्किल हो गया है। गैस की लोड शेडिंग, LPG की कीमत में इजाफे के साथ लकड़ी की मांग और खरीदो फरोख्त के साथ साथ कीमत भी बढ़ गई है। शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में।
یہ بالکل بوانا سردی کی آمد ہے اور ایندھن کا اصول بھی مشکل ہو گیا ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے سے لکڑی کی مانگ اور خرید و فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانا پکاتے وقت گیس نہیں ہوتی، بچے بھوکے اسکول چلے جاتے ہیں، جبکہ لکڑی بھی 1000 روپے سے 1200 روپے تک فروخت ہو رہی ہے، جو کہ ہماری پہنچ سے بالکل دور ہوتی جا رہی ہے. ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بند کی جائے تاکہ ہماری پریشانی ختم ہو سکے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی رقم جب سے سردی شروع ہوئی ہیں تو جو گیس اس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 16 سے 18 گھنٹے جو ہے جو گیس ہے وہ نہیں ہوتی. تو دوسری گیس جو ہے وہ ہم مطلب وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی کافی مہنگی ہے. ہم یہاں پہ لکڑیاں خریدنے آئے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے جو اچھی ہے وہ بھی 1000 سے 1200 روپے جو ہے وہ فی من ہے. تو ہمیں بتائیں ہم 600-700 روپے ایک دن میں کماتے ہیں، سبزیاں خریدیں، گھی خریدیں، آٹا خریدیں یا مطلب یہ لکڑی خریدیں، گیس تو آ نہیں رہی. مطلب ہمارے پاس گھی بھی ہوتا ہے، چینی، آٹا، ہر چیز موجود ہوتی ہے. تو ہم جب ہمارے پاس لکڑی نہیں ہوگی تو ہمیں سالن یا چائے وغیرہ کہاں پہ بنائیں گے. تو ہماری یہ مطلب اپیل ہے جو گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ جو ہماری اس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اس وقت سے یہ لکڑی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. جو پہلے لکڑی 400-500 روپے ملتی تھی اب وہ 600-700 روپے میں ملتی ہے. اور ہم آگے ظاہر ہے یہ ان کو آرے پر چینی بھی ہوتی ہے تو ہم 1000 روپے میں خشک لکڑی دیتے ہیں، جو گیلی لکڑی ہوتی ہے وہ 800 روپے میں دیتے ہیں. اس طرح یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. اور صحرائے چولستان اپنے اندر تاریخ کے انمول خزانے چھپائے ہوئے ہیں. چولستان میں بسنے والے باسی آنے والے مہمانوں کی مہمان ایک خاص قسم کی روٹی جسے چولستان کے باسیوں کی زبان میں کوکی کہا جاتا ہے سے کرتے ہیں. ریت میں پکنے والی سوغات کے بارے میں بتا رہے ہیں چولستان سے سہیل ندیم اپنی اس خصوصی رپورٹ میں. میں وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ صحرائے چولستان اپنے اندر تاریخ کے انمول خزانے سموئے ہوئے ہیں. چولستان میں بسنے والے باسی آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی ایک خاص قسم کی روٹی جسے چولستان کے باسیوں کی زبان میں کوکی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے خصوصی رپورٹ کریں گے. ناظرین خبر یہ ہے کہ عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے، جس کی تکمیل کے لیے مخیر حضرات کے کلیدی تعاون سے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب تسلسل کے ساتھ جاری ہے. ڈی سی چکوال قرۃ العین ملک کی نمائندہ کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی. کہا واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب سے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں قابل ذکر سہولت میسر آئے گی. پینے کے صاف اور صحت افزا پانی کے استعمال سے مختلف بیماریوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے اور یہ امر فلاح عامہ کے ضمن میں بجائے خود قابل تحسین ہے. ڈی سی نے لاوا میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور تحصیل کمپلیکس میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا اور اس کے انتظامی امور کے بارے میں بریفنگ لی اور ہدایت کی کہ دستیاب وسائل کو احسن انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے ڈے کیئر سینٹر کی افادیت یقینی بنائی جائے. خانیوال میں لبیک فلسطین و پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کی صدارت الحاج پیر خالد سلطان القادری نے کی. اس حوالے سے خصوصی رپورٹ کریں گے کیسر چوہدری. جماعت صالحین یونٹ خانیوال کے زیر اہتمام مظلوم فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لبیک فلسطین و استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کی صدارت صاحبزادہ الحاج پیر خالد سلطان قادری سروری نے کی. کانفرنس میں علماء اہل سنت و مشائخ عزائم دینی جماعتوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الحاج پیر خالد سلطان قادری نے کہا کہ آج امت مسلمہ کو وحدت امت کے پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہماری قوم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے. قوم کو اتحاد کر کے میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے. اس چیز پر زور دیا گیا ہے اور آج کا جو میسج تھا اس شہر کے لیے کہ اگر شہر کے سارے لوگ متحد ہو کر اور خانیوال ڈسٹرکٹ اور اس پورے ڈویژن کے لوگ اگر متحد ہو کر باہر نکلیں اور فلسطینی دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی قربانیوں کو سہانے کے لیے نکلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بھی اور دیگر مسلم امت کے اندر بھی
उजागरी आ सकती है। इस मौका पर सरपरस्त आला जमात सालिहीन यूनिट खानेवाल राना लियाकत अली खान सुल्तानी का कहना था कि आज फलस्तीन के मजलूम मुसलमान मदद के लिए हमारी मदद के मुंतजिर हैं। हम अपने पीर की एक आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। मुर्शिद के एक ही इशारे पे हाजिर है लहू हमारा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी जो पूरी टीम मुर्शिद के साथ है। जब मुर्शिद आप अपना इशारा करेंगे हम इंशाअल्लाह पहले लब्बैक कहेंगे। जो भी हमारे मुर्शिद का हमें हुक्म होगा हम मानने के लिए तैयार हैं और फलस्तीनियों के लिए खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। लब्बैक फलस्तीन और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की निगरानी सदर तरीके अहले सुन्नत जनूबी पंजाब शेख जुल्फकार अली रिजवी ने की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अलहाज पीर खालिद सुल्तान ने जमात सालिहीन यूनिट खानेवाल के सरपरस्त आला राना लियाकत अली की दस्तारबंदी करते हुए कॉन्फ्रेंस के मुआविनीन में शील्ड्स भी तकसीम की। पाकपतन की गल्ला मंडी में नौजवान को खाद पड़ी है तो सेल क्यों नहीं कर रहे, पूछना महंगा पड़ गया। हमारी खाद हमारी मर्जी, रेट पर बहस क्यों की। खाद डीलर ने शहरी की दुर्गत बना डाली। शहरियों का खाद माफिया के ओछे हथकंडों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हुकूमती पाबंदी के बावजूद बेशतर स्कूल्स ने बच्चों को तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने के लिए बुलाया था, जिनमें अल्लामा इकबाल स्कूल, एजुकेटर, अल नुसरत स्कूल, दार अरकम, इकरा पब्लिक और अलाइड स्कूल सर-ए-फहरिस्त हैं। सीईओ एजुकेशन का कहना था कि तमाम स्कूल हुकूमती ऐलानात की पाबंदी करें वरना रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। कराची में सीटीडी सिंध हसास इदारे का थाना साइट है में कामयाब टारगेटेड और इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्द औरंगी टाउन के इलाके में कलअदम तंजीम के नेटवर्क को फैलाना चाहते थे। दहशतगर्दों से असलहा बरामद कर लिया गया। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे अनवार अहमद शेख। सीटीडी सिंध वफाकी हसास इदारे ने इलाका थाना साइट ए में कामयाब टारगेट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन किया। तर्जुमान सीटीडी सिंध कालादम लश्कर जंगवी के 4 दहशतगर्द मोहम्मद अमीन उर्फ मुन्ना उर्फ चिंगारी, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सलीम उर्फ मैकेनिक, माज खान, यासीन खान गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी सिंध दहशतगर्द से 2 9mm 2 TT पिस्टल बरामद। मुलजिम ने थाना पाकिस्तान बाजार के इलाके मौलाना रहीमुल्लाह को कत्ल किया, जिसका मुकदमा नंबर 460/2023 है। मुलजिम ने थाना इकबाल मार्केट के इलाके में मोहम्मद शमीम को टारगेट करने के बाद कत्ल किया, जिसका मुकदमा इल्जाम नंबर 148/2023 है। मकतूल सैयद नियाज हुसैन को मंगोपीर के इलाके में टारगेट करने के बाद कत्ल किया, जिसका मुकदमा इल्जाम नंबर 831/2023। गिरफ्तार मुलजिम ने वारदातों में इस्तेमाल होने वाले असला और मोटरसाइकिल बरामद किए गए। अमीन उर्फ मुन्ना और शाहनवाज कालादम लश्कर जंगवी के खतरनाक दहशतगर्द हैं। अमीन उर्फ मुन्ना कत्ल इक़दाम कत्ल के मुकदमे में 9 साल जेल काट चुका है। शाहनवाज सलीम उर्फ मैकेनिक कत्ल इक़दाम कत्ल में 18 माह जेल काट चुका है। मुलजिम ने औरंगी टाउन के इलाके में लश्कर जंगवी के नेटवर्क को फैलाना चाहता था। सीटीडी सिंध वफाकी इदारे ने इंतहाई बारीकी और हिकमत अमली से इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। आला कत्ल गैर कानूनी असले को बरामद कर लिया। अनवार अहमद शेख के नाज़रीन, मटियारी में विफाकी टैक्स मुहतसिब आला पैट्रन इन चीफ कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी डॉक्टर आसिफ महमूद शाह, साबका टाउन चेयरमैन सैयद सिकंदर अली शाह, सैयद सरदार शाह के ताउन से हाजी मोहम्मद शाह प्राइमरी स्कूल में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मटियारी से अली फैजान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मटियारी में वफाकी टैक्स मुहतसिब आला और पैटर्न इन चीफ कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी डॉक्टर आसिफ महमूद जहां की जानिब से और साबका टाउन कमेटी मटियारी के चेयरमैन सैयद सिकंदर अली शाह, सैयद सरदार शाह के तावन से घरों की तामीर की सर्वे की गई और हाजी मोहम्मद शाह प्राइमरी स्कूल में एक रोजा मेडिकल फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें लाहौर के माहिर डॉक्टरों ने फ्री चेकअप करके फ्री अद्वियात दी गई। फ्री मेडिकल कैंप में मर्द, ख्वातीन, बच्चों और बड़ों ने बड़ी तादाद में अपना फ्री इलाज करवाया। उस मौके पर कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के रहनुमाओं ने कहा है कि कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है। हमने मटियारी में तकरीबन 60 घर और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने कोई 1000 से ज़्यादा
पक्के घर बनाए। कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी हम बिला तखसीस और रंग और नस्ल व मज़हब काम करते हैं। मटियारी में आपने देखा होगा जो हमारे जो घर हैं सिकंदर शाह साहब और सरदार शाह साहब हैं, उनके तावन से हमने घर बनाए हैं। कस्टम हेल्थ केयर वारनि जा ऐं शुक्रिया त माना ॻाए सघां थो लाइन थो सघां। 167 खां मथे उन्हनि घर ठाराए ॾिना आहिनि। उन खां सवाइ राशन कपिड़ा गंदियूं जेके सभु माण्हू ॾिसी सघनि था। ऐं अॼु सुबुह खां पंहिंजे अखियुनि सां तई ॾिसो पिया कैंप लॻल आहे जंहिंमें लेडीज़ बि आहे, जेंट्स में डायरेक्ट कासिम महमूद जा साहब पाण वेठो आहे ऐं पाण ॾिसे पियो, पाण डॉक्टर बि आहे। असां तमामु थोराइता आहियूं। पहिरीं त असांजे साईं सिकंदर शाह साहब जा जे कस्टम हेल्थ सर्विस वारनि जे डॉक्टर जेको ॿाहिरि जा डॉक्टर आहिनि उहे घुराए ऐं पंहिंजे अवाम जी ख़िदमत कई आहे। और जेकी कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी आहे इन्हनि जे ख़िदमत जो जज़्बो अहिड़ो आहे कि ही फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन आहिनि। इंसानियत डॉक्टर आसिम महमूद जा साहब का कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी की तरफ से हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर घर बने हैं। रहनुमाओं ने कहा है कि हमारी समाजी फलाही तंजीम है, बिना किसी रंग नस्ल मजहबी फिरका वारत इंसानों की खिदमत पर यकीन रखती है। और मटियारी में सैयद सिकंदर शाह और उनके भाई सैयद सरदार शाह का बहुत अच्छा ताउन और साथ रहा है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम ऐसी ही खिदमत करते रहेंगे। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैज। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात हुई है। अपडेट करते चलें ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इमाम काबा को दौरा पाकिस्तान के मौका पर खुशामदीद कहा है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से अहम तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इमाम काबा को दौरा पाकिस्तान के मौका पर खुशामदीद कहा है। जी, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने इमाम काबा को दौरा पाकिस्तान के मौके पर खुशामदीद कहा है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात भी कायम है। आपको अपडेट करते चले इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने इमाम काबा को दौरा पाकिस्तान के मौका पर खुशामदीद कहा है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। इमाम काबा का पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम के लिए एहसास की बात है, ये कहना है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का। आपको अपडेट करते चले इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत इंसानी हुकूक का खातीन पर तशद्दुद के खिलाफ ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग मुहिम का इफ्तिताह हो गया है। 16 दिन पर मुहित 10 दिसंबर को खत्म हो गई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज का कहना था कि औरत का वजूद दुनिया की बका के लिए जरूरी है। हर वक्त इंसाफ किसी भी मुल्क को तशद्दुद से पाक करता है। तशद्दुद हर मुल्क में होता है, लेकिन इंसाफ का होना जरूरी है। जहां पर इंसाफ हो वहां तशद्दुद कम से कम होता है। बैनुल अक़वामी सतह पर हमेशा पाकिस्तान का मनफी चेहरा दुनिया के सामने पेश किया जाता है। एक पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा भी है जिसको हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जहां खातीन को बेपनाह इज्जत और एहतराम दिया जाता है। यही सिफ्त मुआशरों को दुरुस्त समत परवान चढ़ाती है। वजीर आजम की खुसूसी मुशीर बराए इंसानी हुकूक मशाल मलिक और चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्तिताम पर वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज ने वजारत रेलवे का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।
नासिर खबर शामिल करें लाहौर से, जहां मियां अस्पताल में मरीजों से खिलवाड़ करने वाला गैंग सरगर्म हो चुका है। ऑपरेशन चेकअप करवाने के लिए पैसे मांगने वाले माफिया का सरगना अबू बकर बेनिकाब हो चुका। नौसरबाज प्रोफेसर्स और डीएमएस की मुबैना मिली भगत से अरसा दराज से झांसा देकर मासूम मरीजों को लूट रहा है। अबू बकर साबिक मुलाजिम और पीडी में चंद अरसा पहले करप्शन की वजह से मुअत्तल हुआ है, मगर डॉक्टर्स और सीनियर अमले की मिली भगत से दूर दराज से आए दुखी मरीजों को ऑपरेशन जल्दी करवाने का झांसा देकर पैसे बटोरता रहा है। नौसरबाज साबिक मुलाजिम अभी तक सैकड़ों अफराद से लाखों रुपए सिर्फ इलाज के नाम पर धोखाधड़ी से लूट कर फरार हो गया। पुलिस ने मुतअद्दिद नामालूम मुकदमा दर्ज किए। बिलाखिर कोहिनूर न्यूज ने मुलजिम की निशानदही की। पुलिस को इतला दी, मगर इंतजामिया ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई है। गवर्नर पंजाब और चांसलर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के स्पेशल कॉन्वोकेशन में यूएई सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सालम अल-जाबी को पीएचडी की एजाजी डिग्री से नवाज दिया। तकरीब में वाइस चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर फैसल जंजुआ, प्रो वाइस चांसलर एजाज कुरैशी, मेंबर सेनेट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इमरान मसूद, पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नुमैरा सलीम मौजूद थी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के स्पेशल कॉन्वोकेशन में यूएई के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-जाबी को पीएचडी की एजाजी डिग्री देना मेरे लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान निहायत खुशगवार बिरादराना ताल्लुकात है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि बेहतर हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तानी जामियात टाइम्स हायर एजुकेशन और क्यूएस रैंकिंग में बेहतर पोजीशन पर आ रही है। नासिर वहीं दूसरी जानिब सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन आलमी और मुल्की चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन और कवानीन के खिलाफ वर्जी है। बच्चों को हथकड़ी लगाना, हवालात और जेलों में मुजरिमों के साथ बंद करना, वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना सरासर नाइंसाफी है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ मिर्जा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। सानिया डिफेंस जिसमें 6 मासूम जानें जो हैं वो एक इंतहाई अफसोसनाक जुर्म की नजर हुई, और उसके बाद पहले तो एक तो हम उन तमाम के लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, और साथ ही उसके बाद के पैदाशुदा सूरत हाल जो कि एक नेशनल लेवल के ऊपर कैंपेन जिस तरह से लॉन्च की गई और जिस तरह से ट्रैफिक के हवाले से, उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली पहले ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं, लेकिन उसके बाद जो अब मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह के इकदाम किए गए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। और उसमें ख़ास तौर पे पहली बात तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो नेशनल लॉज और इंटरनेशनल लॉज जो हैं उसके मुताबिक 18 साल तक का जो बच्चा है से नीचे की एज है वो बच्चे की एज कंसीडर की जाती है। लिहाजा उसके इंटरनेशनल लेवल के भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी जितने हमारे कानून हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इकदाम किए जाने चाहिए। जबकि हम ये देख रहे हैं कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, नो डाउट उनको ट्रैफिक लॉज का एहतराम करना चाहिए। ये हमारे वालिदैन की, असातिज़ा की, माशरे की और ओवरऑल जो सोसाइटी है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कहाँ है निसाब जिसके अंदर हम इन बच्चों को ये मौका देते हैं कि वो कवानीन का एहतराम के बारे में वो समझ सकें। हमने बारहा, और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने बारहा रिकमेंडेशंस जो हैं वो फॉरवर्ड की हैं तमाम अरबाब इख्तियार को जो कंसर्न है कि आप करिकुलम का हिस्सा इसको बनाएं, ताकि हमारे बच्चों को खास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके बारे में पता हो, और खास तौर पर जो ट्रैफिक सेंसेस हैं उसके बारे में कभी थोड़ा बहुत तो इशारा हमें दिखाई देता है, लेकिन ओवरऑल चैप्टर होने चाहिए क्लास वाइज, एज वाइज। लेकिन जब वो आप देंगे नहीं, फिर आगाही कोई होगी नहीं उसकी, तो नतीजा यही होगा कि जो घरों के अंदर भी जो लापरवाही और जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है, और वो बच्चे फिर ऑब्वियसली व्हीकल्स लेकर रोड पर आते हैं तो फिर किसी ना किसी हादसे का मौजूद बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए एक जामिया प्रोग्राम होना चाहिए। बट अगेन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो 1989 के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था चाइल्ड राइट्स के हवाले से, उसमें तो बड़ा कैटेगोरिकली 42 राइट्स दिए गए बच्चों को, जिसमें हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। फिर हम दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे पास नेशनल लॉज के अंदर भी जो गुंजाइश है उसमें हमें चाइल्ड राइट्स के ऊपर उनको प्रोटेक्ट करना है। बच्चों को हमने इस माशरे का एक मुस्बत एलिमेंट बनाना है। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या और हो क्या रहा है, वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें बच्चों को गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा के उनको हवालातों में बांधा जा रहा है। उनको ना सिर्फ ये किया जा रहा है, उनके बस्ते बाहर एक ढेर की शक्ल बनाई हुई है, और दूसरी तरफ उन बच्चों को हवालात के अंदर खड़ा करके सबकी वीडियोस बनाई जा रही है, उसको अपलोड किया जा रहा है।
नाज़रीन, अहम खबर आपको दे कि पंजाब हुकूमत ने पार्किंग कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी की ज़ेर सदारत LTA अथॉरिटी का इजलास हुआ। पार्किंग एग्रीमेंट के नफाज को यकीनी बनाने के लिए LTA बिल्डिंग एंड जोनिंग कवायद और ज़वाबित में तरामीम की मंजूरी दे दी गई है। इजलास का मजीद अहवाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज राइस से। जी शहबाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से, इजलास के हवाले से आपके पास? आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LTA अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात व इत्तलात आमिर मीर, सूबाई मशीर खेल वहाब रियाज, सेक्रेटरीज हाउसिंग खजाना बल्दियात तमीरात व मौसलात और LDA के अथॉरिटी के बोर्ड अरकान ने शिरकत की। इजलास में पंजाब हुकूमत ने पार्किंग कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डिंग मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया है, जिसके मुताबिक पार्किंग एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर DC प्रॉपर्टी रेट के मुताबिक 0.5% जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पार्किंग ना खोलने वाले बिल्डिंग मालकान को 10,000 रुपये फी कनाल जुर्माना भी किया जाएगा। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पार्किंग एग्रीमेंट के नफाज को यकीनी बनाने के लिए LDA बिल्डिंग एंड जोनिंग कवायद व ज़वाबित में तरमीम की मंजूरी भी दे दी है। इजलास के दौरान लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए 7 चौराहों पर U-टर्न्स और स्लिप रोड्स बनाने की भी असूली मंजूरी दे दी गई है। फैसला किया गया कि हतमी मंजूरी से कबल आर्जी मशक भी की जाएगी और आर्जी रुकावटें लगाकर ट्रैफिक की आमदरफ्त को चेक भी किया जाएगा। इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत के 32 मुकामात पर आर्जी तजावजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए कैंपों का कयाम और 26 मुकामात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के इक़दामात की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि कनाल रोड हरबंसपुरा और जल्लो के दरमियान बनाने जाने वाले मंसूबे को भी मंजूर किया गया है। इजलास में हाकी के फरोग के लिए जोहर टाउन के हाकी स्टेडियम का इंतजाम निजी शोबे के सुपुर्द करने के लिए जरूरी इक़दामात और टीपा के लिए प्रमोशन कमेटियों की अरसद नौ तश्कील की मंजूरी भी दे दी गई है। हुकूमत की जानिब से पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को लाहौर ग्लोबल विलेज लीज पर देने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरा कार में वाक़या गैर कानूनी तौर पर जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माना आयद करने का भी फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर के 9 सड़कों को कमर्शियल करने के लिए कंसल्टेंट सर्विस की हसूल और जोन में पेट्रोल पंप टर्मिनल की इजाजत के लिए LDA के यूज रूल 2020 में भी तरमीम की हतमी मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज सराई तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में एंटी करप्शन की करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए ने शहरी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारकर सब इंस्पेक्टर थाना गालिब मार्केट लियाकत अली को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद साकिब भट्ट। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की खसूसी हदायत पर पंजाब भर में एंटी करप्शन की करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए ने शहरी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारकर सब इंस्पेक्टर थाना गालिब मार्केट लियाकत अली को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजम सब इंस्पेक्टर लियाकत अली ने शहरी से एक मुकदमे में मदद देने के लिए रिश्वत तलब की थी, जिस पर शहरी बाबर अली सकना गुलबर्ग लाहौर ने एंटी करप्शन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मुलजम सब इंस्पेक्टर से एक मुकदमा के सिलसिले में रिश्वत तलब कर रहा है, जिस पर एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए ने फौरी कार्रवाई की और मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारकर मुलजम सब इंस्पेक्टर लियाकत अली को शहरी से रिश्वत की रकम वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजम से मौका पर निशानजदा नोट बरामद हुए। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब भर में करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां कर रहा है, इसलिए अवाम बेखौफ होकर करप्ट अनासिर की निशानदही करे। करप्ट अनासिर को हर कीमत पर निशान इबरत बनाया जाएगा। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज लाहौर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीशर के हुक्म और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की हिदायत पर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के हवाले से बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर इस खुसूसी रिपोर्ट में। SSP इन्वेस्टिगेशन
अनुश मसूद चौधरी के हुक्म पर कत्ल, अंधे कत्ल और इश्तिहारी समेत डकैत व चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी, जबकि पुलिस ने मुतादिद मुल्जमान को भी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वालों में 1.5 करोड़ रुपए की वारदात करने वाले कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। इसी तरह से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि रवां माह में 56 गैंग के 124 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया और 16 करोड़ 51 लाख रुपए से जायद की रकम बरामद की गई। एसएसपी का कहना था कि ए कैटेगरी के 61 खतरनाक इश्तिहारियों समेत 611 इश्तिहारी, जबकि 760 अदालती मफरूर, 256 लिस्टेड मुल्जमान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया। एसएसपी के मुताबिक इसी माह के दौरान ज्यादती के 128, कत्ल और अंधे कत्ल के 61 मुल्जमान समेत दीगर जराइम में मुलव्विस 28,510 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि रवां माह के दौरान 18,779 मुकदमात के चालान अदालतों में जमा करवाए गए। एसएसपी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बाटापुर में बालियां छीनने के दौरान कत्ल करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। पहला केस है जी बाटापुर का, उसमें जो मुलजिम है वो बाइक पे जा रही थी, इशरत नाम की खातून, उसकी बाली छीनी और वो गिर गई जमीन पर और उसकी उसी वक्त डेथ हो गई। तो ये बिल्कुल टोटली ब्लाइंड था और दैट वाज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस कि इसको हम कैसे ट्रेस करें, बिकॉज उस साइड पर कैमरास बिल्कुल नहीं थे और कोई हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी। बट ऑफ कोर्स ये पुलिस की मेहनत से टीम्स बनी, इन्होंने जहाँ पर ये वकूआ हुआ वहाँ से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सीसीटीवी फुटेजेस देखी और टेक्निकल असिस्टेंस से इस मुलजिम को ट्रेस किया। उसने बाद में कन्फेस भी, उसको वो आर्टिफिशियल बाली थी और उस एक बाली के छीनने की वजह से इंसान की जान चली गई। ये मुर्गियों का काम करता है और दैट्स हाउ इट वाज ट्रेस्ड। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारा केस था जो ट्रेस हुआ और सामने आई हकीकत क्या थी। इसके अलावा ब्लाइंड मर्डर है शाहदरा में, एक मुलजिम नदीम ने एक बंदे को कत्ल कर दिया सिर्फ लेन देन के मामले, और ये भी एक ब्लाइंड मर्डर था बिकॉज ये लोग सगिया पुल पे इसको फायरिंग करके चले गए थे और वहां पर भी हमारे पास कोई क्लू नहीं था सिवाय इसके कि ब्लाइंड मर्डर था और उसमें हमें ये भी लग रहा था कि मे बी डकैती हुई होगी। एसएसपी का कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, जुर्म करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और जेल का रास्ता भी दिखाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वसीम साबिर, चीफ क्राइम रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज लाहौर। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और बाखबर भी।